Today we start the second part of rotation. That is, we start from we already complete center of mass, and from today we start the rotation, which is very important. Okay. First you can write the definition, or you can define rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy. So what happened in rotational kinetic energy? What happened in rotational kinetic energy? Suppose you have a irregular shape object. Suppose you have a irregular shape object and you want to rotate that irregular shape object with respect to that rotational axis. Suppose m1, m2, dot, mn are the n number of particles which are placed at the position r1, r2, dot, rn position, moving with angular speed omega. So according to the definition, as you have individual particles of mass m1, m2, dot, mn, kinetic energy total, that is the kinetic energy by the first particle, kinetic energy by the second particle, dot, kinetic energy by the n number of particles. Now we know half for the first particle m1. See if this is the position. Suppose this is the position moving with velocity omega, angular velocity omega. So the tangential speed is this v, which makes an angle always 90 degree, this one and this one. So v1 square half m2 v2 square dot half mn vn square. And we know from the definition that speed is r omega. So what we can write, half m1 r1 omega square half m2 r2 omega square dot half mn rn omega square. From that we can take half omega square common. What we have, m1 r1 square m2 r2 square dot mn rn square. अब ध्यान से देखो, ये जो mn rn square ये है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट. इस इंपॉर्टेंट नोट पे एक डेफिनेशन है. Suppose you have a regular or irregular shape object, and if you want to rotate this with respect to any axis, you can put it outside or you can put it inside also. कहीं पे भी हो एक रोटेशनल एक्सिस, मानो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ये पॉइंट है m1, ये पॉइंट है m2, and that way we can say suppose यहाँ एक पॉइंट है mn, so they all are moving. So here you have a definition, moment of inertia. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? Just give me 1 minute. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? Moment of inertia is the sum of the product of mass and perpendicular distance of individual particle from that rotational axis. So for the first particle m1, distance is r1 square. The product of mass and the perpendicular distance, or इसका sum, इसलिए definition क्या है? Sum of the product of mass and the
square of the perpendicular distance of from the rotational axis is called the moment of inertia. So this moment of inertia को we can write in that manner also, summation I1 to n sum up m I from 1 to n ri from 1 to n square. Or else this one is valid for if you have individual particle, but if they are in a they are not individual, if it is a continuous, then we can use the symbol integration. अब देखो integration में भी total particle है and this particles are very small, but the distance is not very small, so what we can write dm r square. So ये मेरा moment of inertia का definition हुआ, which is very very important. और आज का जो क्लास है ये पूरी इस moment of inertia के ऊपर based करके ही है. So on that basis, if we know this one, that important note, if we know this one, so instead of this one, we can use this symbol or I. So we can write half omega square I1 to n mi r square, which is I, half I omega square is the particle energy. This derivation is also very, very important, which we can see later on. Is it clear, everyone? Hello? Yes, sir. Everyone, you understand? Is it okay? Yes, sir. अब देखो, after that, स्पेशली मैं तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूंगा जिसको तुम्हें याद रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उनमें से कुछ हम डिराइव करके भी देखेंगे, हालांकि डिराइवेशन नहीं है तुम्हारा सिलेबस में, फिर भी हम लोग कुछ डिराइवेशन करके देखेंगे. सो दिस सम इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है इसमें से. फर्स्ट वन इज रिंग. ये है रिंग और ये है रोटेशनल एक्सिस. दैट एक्सिस इज एक्चुअली लुक लाइक दिस, मतलब परपेंडिकुलर विद द plane. So if r is the radius, m is the mass, then moment of inertia is mr square. The second is disk. Moment of inertia is. Third is rod. Moment of inertia is 1/12. Fourth is shell. Moment of inertia is 2/3. And fifth one is sphere. So what is the difference between these two? This one is shell, means hollow sphere,
and this one is sphere, means solid sphere. So it will be like a football, and this one is like a shot put ball या ड्यूस बॉल, जिसके अंदर में पूरा ठोस है, और इसका क्या है, अंदर में ठोस नहीं है, तो ये हल्का है. So before you start anything, तुम्हें ये 5 को एकदम याद रखना पड़ेगा. So are you ready for that? Is it okay for all of you? First one is ring, ऐसे करके बोलना पड़ेगा. Ring mr square, disk half mr square, and rod 1 by 12 ml square, shell 2 by 5 mr square, 2 by 3 mr square, sphere 2 by 5 mr square, rod 1 by 12 ml square. Is it okay? See, is it okay, everyone? Yes, sir. Everyone? Students, is it okay? Students, is it okay? Yes, sir. I can check it how much it's okay. Anindo, হ্যাঁ স্যার রডের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত? তোর ব্যাকগ্রাউন্ডে গান চলছে? স্যার তুই কি আমাদের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে তো এর জন্য অনেক আওয়াজ। তুই কি রিক্সাওয়ালা আশেপাশে আছে তোর বাড়িতে, না সিনেমা হল আছে আশেপাশে? না স্যার, পাশের বাড়িতে বিয়ে চলছে তো ওটা আওয়াজ। বিয়ে? তোর বিয়ে চলছে না তো? না না স্যার, আমার না। আচ্ছা, অঙ্কন বল। বন্ধ কর, বুঝে গেছি, বন্ধ কর। অঙ্কন বল, রডের কি হবে? অঙ্কন। एकता कुमारी। यस सर। रॉड का क्या होगा? सर 1/12 ml स्क्वायर। शेल का क्या होगा? सर किसका? शेल 2/3 ml स्क्वायर। डिस्क का क्या होगा? हाफ ml स्क्वायर। बानीब्रतो सोहिनी। Yes, sir. Summer. स्फेयर हाँ की sir. হবে? स्फेयर So 2/5 mr square. খাতা দেখে দেখে বলছিস? Yes, sir. सोहिनी so these are very very important, you have to remember this. अब मैं तुम लोगों को थोड़ा दिखाऊंगा, हालांकि ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं कुछ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालता है आई वांट टू शो यू. सो वी स्टार्ट फ्रॉम रिंग, तो यू गेट सम कॉन्फिडेंस कि ये सब आया कैसे. ओके, तो सबसे पहले देखो, इफ आई राइट नंबर 1 रिंग, तो देखो एक रिंग है, ये है सेंटर, ये है रोटेशनल एक्सिस. ऑब्वियसली दिस एक्सिस इज perpendicular with the plane, means this one is your axis, this one is your axis, और इसका जो रेडियस है वो है r. यहाँ पे हम लोगों ने एक स्मॉल पार्टिकल लिया dm. ओके, तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर या इंटीग्रेशन ऑफ dm स्मॉल r स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो, ये जो रिंग है इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, r is fixed, तो dm is a very small mass and r square. अब देखो r स्क्वायर को हम बाहर कर सकते हैं, तो dm कहाँ से कहाँ तक, जहां से शुरू हुआ वहां पे खत्म. टोटल मास इज m, so we can write 0 to m. So what we have, dm का इंटीग्रेशन क्या हो गया, m, तो r स्क्वायर m minus 0 m r square. Is it okay?
Everyone, is it okay? Yes, sir. Okay, everyone. Hello. Next is disk. देखो डिस्क में क्या होगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिंग एंड डिस्क? डिस्क जो है सॉलिड होता है, मींस कोई गैप नहीं होता है, एंड द रेडियस इज गिवन आर। ये मेरा रोटेशनल एक्सिस है। तुम चाहो तो इसको, दिस इज एक्स वाई प्लेन, इफ यू इमेजिन दिस एक्स वाई प्लेन, सो यू कैन से दिस इज द जेड एक्सिस, जेड जेड डैश, एंड द रेडियस इज आर। तो अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें एक एलिमेंट्री रिंग लेना पड़ेगा। जिसका रेडियस है आर, थिकनेस है डी आर। सपोज इस पूरा डिस्क का मास है m, सपोज इस पूरा डिस्क का मास है m। तो अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी नो dm स्मॉल r स्क्वायर। तो इस रिंग को देखो, डिस्क कैसे बनता है, छोटा छोटा रिंग को हम अगर मिलाएंगे तो ये धीरे धीरे डिस्क बनेगा, बनेगा ना, देखो, है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसी को इंटीग्रेशन कर दे dm r स्क्वायर को फ्रॉम 0 टू रेडियस r, मुझे डिस्क मिल जाएगा। इज इट ओके? हेलो। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे ये जो मास है, ये रिंग का मास है। तो रिंग का जो मास है इन टर्म्स ऑफ डिस्क क्या होगा, ये जो डिस्क है ये क्या कैसा दिख रहा है, एरिया दिख रहा है ना, क्या ये एरिया दिख रहा है? Yes, sir. सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। तो मास इज m, पर यूनिट एरिया इज पाई r स्क्वायर into area of the ring. So anyone tell me what is the area of that red portion? Area of the ring. Anyone tell me what is the area of that red portion? Pi small r square. Pi smaller square तो इसका अंदर वाला हो गया, मुझे तो सिर्फ लाल वाला का चाहिए, मुझे सिर्फ इतना का चाहिए। ताले pi capital R square minus pi small r square. पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई, तुम तो ये वाला एरिया बोल दिया, मुझे तो सिर्फ रेड का चाहिए। Anyone, any idea? कोई कुछ तो बोलो। सर 2 पाई r dr। 2 पाई आर डी आर, कौन बोला ये? सर एकता। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब, वंडरफुल। देखो मैं अगर इसको काटता हूं, मैं इसको अगर काटूंगा तो इट लुक लाइक दिस। मैंने काट के स्ट्रेट कर दिया, सो इट लुक लाइक दिस। अब इसका लेंथ कितना है, सर्कमफरेंस कितना है, 2 पाई आर। उसका थिकनेस क्या है, डी आर। वी नो लेंथ इनटू ब्रेथ is the area, so length is 2 pi r, breadth is dr, so pi cancel, so what we have 2m by r square into dr is the mass
of the elementary ring. You can write it if you want. Mass of elementary ring. Mass of elementary ring. So if we put this value, then moment of inertia is 0 to r. dm के जगह we put 2m by r square dr into r square. अब मैं इसे कांस्टेंट को बाहर कर दूंगा. 2m कांस्टेंट है, r square कांस्टेंट है, तो मेरे पास रहा r square और यहाँ पे एक r है ना. आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी. तो कितना हो गया? r into this r cube dr 0 to r. तो कितना आएगा? 2m by r square. तुम सबको इंटीग्रेशन मालूम ही है, पावर इज क्यूब, तो 3 plus 1 by 3 plus 1 0 to r. क्या होगा? Which is I is equals to 2m by r cube, 2m by r square. यहाँ पे 3 और 1 4, so r to the power 4 by 4 0 to r. इसको बाहर ले जा सकता है. 2m by 4r square r to the power 4 minus 0, that is 1 by 2 mr square. Is it okay, everyone? So my moment of inertia is 1 by 2 mr square. Is it okay, everyone? Is it okay? Yes, sir. If it is okay, so now if you want, you can take a screenshot also. Next is rod. देखो मेरे पास एक रॉड है. Let L is the length of the rod और मैंने ये सेंटर लिया है. So I give you one hint. If we suppose this is 0 0, so this one we can say L by 2, this one we can say minus L by 2. So mass of the rod is m. So my question is, find the moment of inertia of this rod by using the same formula dm r square. I give you 2-3 minutes for that. Okay, your time starts now. Hello. देखो, for that हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लेंगे. Like the mass of this is dm and the thickness is dx, which is at a distance x from this. So what happened? Sir, dx the rodded thickness. हाँ. So अब मुझे चाहिए dm चाहिए. dm मेरा कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द रॉड कितना है? m. टोटल लेंथ कितना है? l. थिकनेस कितना है? dx. So what about I? dm x स्क्वायर लेना है क्योंकि हमने r के जगह पे x लिया है. तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx x स्क्वायर. और जो लिमिट लेगा, अगर ये ओरिजिन है, लेफ्ट साइड में माइनस l by 2, राइट साइड में प्लस l by 2, तो मैं माइनस l by 2 टू l by 2 ले सकता हूँ. तुम चाहो तो, ये मैं तुम लोग का होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आधा आधा रॉड भी सोच सकते हो. तो 2 into 0 to l by 2 हाफ रॉड ले लिया और dm x स्क्वायर करके भी ला सकते हो. मतलब एक ही है, माइनस l by 2 प्लस l by 2.
तो m by l बाहर कर दिया, x square dx minus l by 2 plus l by 2 m by l, पावर है x का पावर 2, तो 2 plus 1 by 2 plus 1 minus l by 2 plus l by 2, तो ये क्या हो गया, m by l x cube by 3 minus l by 2 plus l by 2, i कितना हो जाएगा, m by 3l अपर लिमिट l by 2 स्क्वायर माइनस l by क्यूब l by 2 क्यूब, कितना हो गया, m by 3l, ये हो जाएगा l क्यूब by 8 प्लस l क्यूब by 8, तो m by 3l 2l क्यूब by 8, इसको काट सकता है 4, तो देखो ये l एक कैंसिल हो जाएगा, 1 by 12 ml स्क्वायर। ओके सर इज इट ओके, हाँ बोलो। सर dm equals to m by l dx टाइप में पूछिए देगा, dm equals to m by l mass dx per unit length into length of the elementary part, এইটুকু আমি মাস পেলাম, ঠিক আছে স্যার, এই যে এইটুকুর মাস, इतना का मास, ठीक है। यस सर। हेलो, इज इट ओके। इसी क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन में कहता कि अगर मुझे बोलता मिडिल से नहीं एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, एंड से, तो ये मैं x ही लेता, लेकिन अब मेरा लिमिट 0 to l हो जाता। तो सेम क्वेश्चन अगर मुझे कहता फ्रॉम एंड, तो मैं यहाँ पे लिमिट 0 to l लेता, 0 to l करता, 0 to l करता, 0 to l करता, 0 to l करता, तो यहाँ पे मेरा तब क्या आता, तब मेरा आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया m by 3l upper limit l cube minus 0, that is m by 3l into l cube 1 by 3 ml square। हमें ये याद रखना पड़ेगा, रॉड का मिडिल से होता है 1 by 12 ml स्क्वायर और एंड में होता है 1 by 3 ml स्क्वायर। इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाला क्लास में हम लोग देखेंगे कि दूसरा एक मेथड से देखेंगे जिसमें ये इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने जो 5 जो इनिशियल दिखाया तुमको, रिंग, रॉड, रिंग, डिस्क, रॉड, शेल एंड स्फीयर, ये 5 अगर याद है तुम्हें, और अगर तुम्हें वो 2 थ्योरम याद है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, then also you can find this all things within a very small interval of time, मतलब 2 से 3 लाइन में। लेकिन आज हम तुम लोगों को कुछ बेसिक दिखा रहे हैं, और ये भी दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा जो फोर्थ डिराइवेशन है जो मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें, वो है रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब का देखो, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है,
जिसका लेंथ है a, ब्रेथ है b, हमें इसका बीच में से चाहिए ये वाला। तो इसको अगर हम ओरिजिन मानते हैं इसका इस हिसाब से, क्योंकि ये a है तो ये मेरा a/2, ये वाला -a/2 होगा, इसके हिसाब से ले रहे हैं हम। तो इसके लिए हमें एक एलिमेंट्री पार्ट लेना पड़ेगा, जिसका मास है dm, इसका टोटल मास m है, जिसका डिस्टेंस है x और इसका थिकनेस है dx। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? यस सर। मुझे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ dm x² -a/2 टू +a/2। लास्ट वाला जो रॉड किया था इसमें l/2 -l/2 लिया था, तो ये पोर्शन सेम है। और मेरा इसका जो dm x² -l/2 +l/2 आया था, m आया था, dm आया था m/l dx, यही आया था ना लास्ट वाला में। अब हम इसको, अगर इस एलिमेंट्री पार्ट का मास चाहिए तो मेरा टोटल मास कितना है m, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, टोटल एरिया लेंगे, है ना? है कि नहीं? यस सर। So what is the area? A into B. Is it clear? यस सर। And what is the area of this elementary part? Ekta. What is the area of that elementary part? Ekta, Panibroto, Ankon. Anyone tell me fast? What is the area of this rectangular, this part? कितना समय लगाते हो तुम लोग? Panibroto, ball. Sir, dx into b হবে? Yes, B is the length and thickness is dx. So B into dx. एक चीज ध्यान दो, B कट गया, एक चीज देखो, B कट गया, B कट गया। तो एक चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं कि देखो, जब हम लोगों ने रेक्टेंगल का लेंथ लिया तो थिकनेस डिपेंड नहीं किया, B कट गया। जैसे रॉड में भी क्या था, सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड किया था, व्हाटएवर बी द थिकनेस ऑफ द रॉड। इसका मतलब रेक्टेंगुलर स्लैब हो या रॉड हो, दे आर सेम और इट डिपेंड ऑन ओनली द रॉड। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको पुट करूं, सो m/a x² dx -a/2 तो ये मेरा क्या हो जाएगा उस हिसाब से। देखो जैसे रॉड का आया था यहाँ पे 1/12 m a² आना चाहिए, और ऐसे अगर हम एंड का निकालना चाहे 1/3 m a² आना चाहिए। अगर मैं इसको निकालना चाहता था तो इस समय परपेंडिकुलर कौन हो गया, b है कि नहीं, बोलो? यस सर। तो फिर हम इसको क्या लिख सकता था, 1/12 m b² होना चाहिए। और अगर मैं इसका रेस्पेक्ट में निकालना चाहूं तो 1/3 m b² होना चाहिए। मैं अभी एक दिखा रहा हूं तुम लोगों को और फिर मैं दूसरा वाला तुम लोगों को करने दूंगा, या मैं ही थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। तो देखो क्या होगा, m/a को बाहर कर दिया, x² dx -a/2 2a/2, तो m/a x³ 3/3 -a/2 -a/2 cube m/3a a³/8 plus a³/8, so m/3a 2a³/8, so 1/12 m²। देखो आया, सेम वैल्यू आया ना?
आया? हाँ सर। यही अगर मैं एंड में करता तो मैं क्या लिखता, 0 to a, तो फिर मेरा क्या आता, 1/3, है कि नहीं बोलो? Everyone, you understand this? यस सबको समझ में आया? So now you can try, I give you 2 minutes for that. You can try instead of this, अगर मैं कहता कि ये वाला ना करके अगर तुम ये वाला करता, और ये x है और ये थिकनेस dx है, तो मैं कितना एक्सपेक्ट करता हूं, 1/12 mb²। इज इट ओके? यस और अगर मैं इसके जगह पे मैं अगर यहां से करता तो मैं कितना एक्सपेक्ट करूंगा, 1/3। इज इट क्लियर? So let's try this one. So in that case मेरा थिकनेस ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा? What is the area of this? m by No, इसका एरिया बोलो खाली। the a into dx। तो यहाँ पे मैं तब a लिखता है ना, तो ये b के जगह पे a काटता है ना, और लिमिट में मैं अब थोड़ा चेंज करूंगा, मैं रॉड का एंड से ले रहा हूं, 0 to b लिखूंगा, है कि नहीं बोलो? है कि नहीं? यस तो मैं इसको फिर नेक्स्ट वाला में ये वाला मैं प्रूफ करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसको हटाया, लिमिट को हटाया, तो 0 to b, यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा, यहाँ पे बचेगा b, ये 0 to b, यहाँ पे होगा b, यहाँ पे 0 to b। इज इट क्लियर एवरीवन? देखो क्या आया, m/3b b to the power cube minus 0 1/3। समझ में आया? Is it okay? यस So I think you realize कि why this one is very very important and these derivations are very very important। और मैंने ये भी दिखाया रॉड और रेक्टेंगुलर स्लैब क्यों सेम है, और इसीलिए मैंने 5 जो मेरा इंपॉर्टेंट है उसमें रेक्टेंगुलर स्लैब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें रॉड मालूम है तो रेक्टेंगुलर स्लैब भी मालूम चल जाएगा। रॉड का सेंटर वाला मालूम करने से बाकी मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी निकाल सकता हूँ, जो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। आज मैं वो सब में नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरा जो मेन है 5 मेरा था, और सबका सब परपेंडिकुलर विद द प्लेन में था। नंबर 1 था रिंग mr², नंबर 2 था डिस्क हाफ mr², नंबर 3 था रॉड 1/12 ml²। तो जहां पे लंबाई का बात होगा और मिडिल वाला में होगा तो 1/12 m into l²। अब l के जगह पे जैसे यहाँ पे a है तो 1/12 m a², अगर मैं b वाला लूं तो 1/12 m b², और इसका अगर एंड से ये भी अभी मुझे पता है 1/3 m l², जो मैं बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम से या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो उसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, याद सिर्फ 5 का रखना है। रिंग mr², डिस्क हाफ mr², रॉड 1/12 ml², shell 2/3 mr², and sphere 2/5 mr²। Is it clear? यस हमने देखा रॉड और रेक्टेंगुलर स्लैब लगभग एक ही जैसा है, वो लेंथ पे ही डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? और रॉड का मिडिल से होगा तो 1/12 ml² और एंड से होगा तो 1/3 ml², जो हम लोग बाद में उसको भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? ठीक है? यस सर तो रोटेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, मैं इसमें ज्यादा आज तुम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। एक बार में ज्यादा प्रेशर देने से तुम लोगों का हालत खराब हो जाएगा। तो मेरा आज का जो क्लास है इतना ही था।
फिर जो मेरा थर्सडे वाला क्लास होगा उसमें मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा जो इसके साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो इसको बहुत ज्यादा अच्छा से याद रखोगे तभी मैं नेक्स्ट वाला में थोड़ा बहुत कुछ बता सकूंगा। क्लियर? मेरा Yes, 2 sir. क्लास सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही होगा, कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और फिर हम लोग कुछ एंट्रेंस लेवल का देखेंगे जिसमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन नीट एज वेल एज आईआईटी में आता है। तो वो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीट एंड आईआईटी में प्रीवियस कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछा है। तो लास्ट क्लास इज नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका पूरा एप्लीकेशंस सब का सब कैसे निकालते हो और एंट्रेंस एग्जाम में कैसा किया ये पूछूंगा। तो शायद ये वाला क्लास जितना थोड़ा सा छोटा हुआ 40-45 मिनट का, शायद वो वाला क्लास 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट का भी हो सकता है, और ऑनलाइन में थोड़ा टाइम कम लगता है। यही जो आज का क्लास था ऑफलाइन में लगभग 1.5 घंटा का क्लास हो गया सर। इज इट ओके एवरीवन? हाँ, Yes, sir. और मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय। किसी का कोई डाउट है तो बोलो मुझे। हेलो, Yes, sir. चलो बाय बाय देन। Bye, bye, sir.